संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों नमस्कार।
शास्त्र विरुद्ध भक्ति का परिणाम भी कुछ ऐसा ही है। चाहे जितनी कोशिश कर लें, अगर सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया तो सिर्फ निराशा, दुख और प्रारब्ध ही मिलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, अंकिता साहू जी को उनका जीवन भी पहले किसी कठिन इम्तिहान से कम नहीं था। वे हिंदू धर्म में प्रचलित ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा माता जी की भक्ति में लीन थीं, परंतु उसके प्रतिफल में सुख शांति के बजाय विपरीत प्रभाव ही प्राप्त हुआ। उनका जीवन अजीब सी समस्याओं से घिर गया, जैसे भूत प्रेत बाधाएं, दिल में छेद जैसी जानलेवा बीमारी, पिता का कारोबार ठप हो जाना और भी न जाने कितने असीम दुख। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया, जब उन्होंने एक तत्वदृष्टा संत द्वारा दी गई शास्त्र अनुकूल भक्ति अपनाई। तो आइए जानते हैं उनके मुख से उनके जीवन में आए इस अलौकिक परिवर्तन की सच्चाई। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंकिता साहू है। अंकिता जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से हूँ। अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 16 मार्च 2018 में ली है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थीं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जितने भी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता की सभी की भक्ति करती थी और ईस्ट में शेरावाली माता की ज़्यादा पूजा करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? मेरी मम्मी को भूत प्रेत की समस्या थी, जिस कारण हम लोग सभी कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ हुए हैं। जैसे कि मेरी मम्मी को भूत प्रेत की बाधा थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत तांत्रिकों के पास भी दिखाया हमने और बहुत जगह झाड़ा फूक सब करवाए, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। उनकी भूत प्रेत की बाधा की वजह से उनके हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता था और उनको एक बार काल के दूध भी लटके हुए घर में दिखे। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भूत प्रेत की बाधा उनको नहीं है और वो एकदम ठीक है। दिक्कत भूत प्रेत की बाधा थी और हमेशा हाथ पैर में दर्द रहता था। और मेरा नाम जो स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला था, वो स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा लॉटरी में नाम निकला और अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ। और मेरे पापा का 1 साल से बिजनेस बंद था, 1 साल से वो घर में बैठे थे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो अभी अपने जॉब में जा रहे हैं और अच्छे से भक्ति भी करते हैं। और मेरे पेट में दर्द रहता था, एक साइड दर्द रहता था। दर्द के कारण मैं एकदम बैठ जाती थी। उसकी रिपोर्ट भी मैं लाई हूँ। मैंने बिलासपुर में दिखाया और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ये दर्द ठीक हो गया। अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। ये दर्द मैं जब 11 साल की थी तब से हो रहा था। मेरे हार्ट में, छोटी थी मैं जब, तो मेरे हार्ट में गैप था, जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ऑपरेशन भी टल गया और अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मेरे हार्ट में गैप भी नहीं है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिसमें सब चीज़ नॉर्मल दिखा रहा था। ये मेरे पेट में जो दर्द होता था वो सब ये रिपोर्ट है। हार्ट की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर सत्संग चल रहा है, जिसमें नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण।
सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं, और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो, इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इसके सभी विभाग बता देता है अलग अलग करके, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये भूमिका परमात्मा ही कर सकता है तत्वदर्शी संत की, और कर नहीं सकते। तत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आधार से जो ज्ञान प्रचार करता है वो तत्वदर्शी होता है। यहाँ के ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, कहता है मैं पता नहीं कहां से उत्पन्न हो गया और कौन मेरे जनक हैं। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आगे सबको प्राप्त है, इंक्लूडिंग विष्णु और शिव जी तक, उसी से ज्ञान प्राप्त है। तो उसके बाद कितने ऋषि महर्षि अपनी चतुरता दिखाते रहे, वो तत्वदर्शी कैसे हो सकते हैं? वो परमात्मा की एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आज तक। सतयुग से लेकर कलयुग तक परमात्मा चारों युगों में आते रहे और यहाँ ज्ञान प्रचार करते रहे। प्रश्न किया करते हमारे धर्मगुरुओं से कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको पंडित जी दो बताओ। ये ज्ञान का उत्तर ना देकर के उनके साथ झगड़ा ठाना करते थे। और इनको अजर अमर अविनाशी, इनका कोई जनक नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कालज्य है, मृत्युंजय है, ऐसे कहकर ये हमें भ्रमित किया करते थे। तो परमात्मा हमारे को यहां से काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं। कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ है कर्मों के बंधन से हम यहाँ बंधे हुए हैं। हमारे इन बंधन को काटकर भगवान हमें मुक्त कराता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाल। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया, परमात्मा ने बताया है कि सभी विभाग बताए संसार रूपी वृक्ष के, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इसको निरंजन ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जैसे पेड़ कौन सा होता है, जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, अंदर का जो जड़ें होती हैं, मूल हैं, वो गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, वो अव्यक्त होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। तो मूल स्वयं परमात्मा ही थे कबीर भगवान, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो। और उसके बाहर जो दिखाई देता उसके विषय में उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सरपुरुष वा की डार, जो मोटी डार निकलती है उसको ब्रह्म समझो, और तीनों देवा शाखा हैं, उस शाखा, उस डार के आगे 3 शाखा समझो, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तप गुण शिव जी जानो। एक बार इस चित्र को देख लीजिए, फिर आसानी से समझ पाओगे। ये एक चित्र है, ये कंप्लीट चित्र देखो। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है, इसके विषय में परमात्मा ने जानकारी दी है कि अक्षर पुरुष, ये तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।
अब ये परमात्मा बता रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये बाहर दिखाई देता है सारा पेड़ समझो, लेकिन इसका जो तना है ये है वो, ये तना तो सरपुरुष है और अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है। ये हम यहाँ हैं, ये पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन है ये बताने के लिए इस दास को भेजा है। परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है, जो गुप्त है, प्रोक्ष है, पृथ्वी के अंदर समझो, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकह लोक, ये नीचे का पुरुष, नीचे का। और ये है कौन? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। तो ये है वो संसार रूपी वृक्ष। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का वर्णन है। ये वर्णन है, ये निष्कर्ष है इसका कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतनी जानकारी दी है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का समझो, अविनाशी वृक्ष है। और जो इसके सभी पार्ट्स ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवयम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित, इसके सभी छंद, सभी विभाग जो जानता है, पत्तों समेत इसके सब छंद हैं, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष समझो। और इसके पत्ते आदि सभी छंद हैं, और जो इन सभी विभागों को जानता है, सब न्यारे न्यारे बताता है, स वेदवित व तत्वदर्शी संत है। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय 15 के श्लोक 1 में जो वर्णन है कि वो वेदवित, वो तत्वदर्शी संत सतगुरु होगा, वो कौन है? जिसने ये वाणी बोली है अपने सुख संवेद में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने उस तत्व ज्ञान में बोला है, तो वो सतगुरु भी वही हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो और तुम ही सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले अध्यात्म मार्ग का यह सर्व ज्ञान, और आप ही हंस हो, तुम ही सच्चे भक्त रूप में भी आप ही एक भूमिका करे। तो यहां बताया है कि उस परमेश्वर ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है और उसके पास तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ही सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बोलता है। जो परमेश्वर के मुख कमल से उद्धृत वाणी होती है वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञों का यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण होता है, और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से, सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से, ब्रह्मणे मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे
तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो इस ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके सभी विभाग, पत्ते आदि इसके सभी भाग हैं। और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस अज्ञान रूपी अंधकार में उलझे हुए इस अज्ञान को काटकर, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है वो। तो दास जो ये बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाल, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। अमर करूं, उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अपने आत्मा ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के, जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। अब आपको चश्मदीद गवाहों के तौर पर कुछ प्रमाणित संतों का हवाला देकर ये प्रमाणित करेंगे कि कबीर परमेश्वर ही सृष्टि के रचनहार हैं, वही कुल के मालिक हैं। देखिए, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे हमदर्द हैं। काल लोक में फंसी अपनी अच्छी आत्माओं को कबीर परमात्मा ढूंढते रहते हैं, जो यहाँ भयंकर कष्ट उठा रहे हैं। कबीर परमात्मा बिजली जैसी गति से अपने निज धाम सतलोक से आकर यहाँ काल लोक में प्रकट होते हैं और वापस सतलोक जाने का रहस्य बताते हैं। वो भक्ति के ऐसे गूढ़ मंत्रों को उजागर करते हैं। दर्शकों, ऋग्वेद के इस मंत्र में साफ लिखा है कि हरि यानी वह पूर्ण परमात्मा, देवा नाम देव यानी देवताओं का भी देवता, गुहानी अर्थात गुप्त, नामा विश करनौती नामों को प्रकट करता है। वह पूर्ण परमात्मा जो देवताओं का भी देवता है, वो गुप्त नामों को प्रकट करता है, जिन मंत्रों से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने संत गरीब दास जी को बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यानी सोहम शब्द कबीर परमात्मा द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त विश्व के किसी भी शास्त्र में नहीं है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 9 के सूक्त 95 के मंत्र 2 में यही प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधकों को काल लोक से मुक्त करने के लिए गुप्त नामों का आविष्कार करता है। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1,
धनी धर्मदास, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया व अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद व सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे व एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू, दर कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीब दास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। दादू को सतगुरु मिले, दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कह, यह दादू की नहीं सीख। दादू दास जी ने भी परमात्मा कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है। उन्होंने कहा है कि मेट दिया अपराध सब, आन मिले छिन्न माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। गवाह नंबर 4, मलुकदास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्री अरोड़ा परिवार में हुआ था, जो किसानों का एक बहुत अमीर परिवार था। वो गांव के मुखिया चौधरी थे। 900 एकड़ जमीन थी। चौधरी मलुकदास जी को बचपन से ही ईश्वर पर अटूट विश्वास था। जब मलुकदास जी बड़े हुए तो वे खेती का काम करते थे। मलुकदास जी अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी। परमात्मा ने एक लीला करके उन्हें अपनी शरण में लिया था। आदरणीय मलुकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे। परमात्मा कबीर जी की महिमा में मलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहत है,
खोजो खसम कबीर। गवाह नंबर 5, घीसादास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी सन 1803 में हुआ था। एक दिन घीसादास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सहशरीर आए और घीसादास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा घीसादास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय घीसादास जी ने परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से सतलोक तथा सत्पुरुष की महिमा सुनी और सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। बालक घीसादास जी अचेत हो गए। अगली सुबह बालक घीसादास जी को जब होश आया तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को भी अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 6, सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रबेस के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? परमात्मा कबीर जी ने उत्तर दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा रूमी और परमात्मा कबीर जी की मुलाकात हुई। परमात्मा कबीर जी के तर्क सुनकर रूमी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद कई बार परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी से मिलते रहे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की व अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। गवाह नंबर 7, जंबेश्वर जी, संरथल, राजस्थान। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जंबेश्वर जी महाराज का जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्ति स्थल समराथल राजस्थान में है। संत जंबेश्वर जी को परमात्मा कबीर जिंदा बाबा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जंबेश्वर जी की वाणियों में भी देखने को मिलता है। जंबेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। संत जंबेश्वर जी ने बताया है कि जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे, उस समय परमात्मा कबीर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा मक्का में मिले थे और उनको जगाया था कि मंदिर मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। आगे वाणी में संत जंबेश्वर जी ने यह भी बताया है कि वही परमात्मा थल सिर समराथल राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। गवाह नंबर 8, शेख फरीद। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था। परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया कि घोर तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए व कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया। शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सतनाम प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सार शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। गवाह नंबर 9, तैमूर लंग।
तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। फिर भी तैमूर लंग ने परमात्मा कबीर जी को भोजन ग्रहण करने को कहा और परमात्मा कबीर को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग को बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूर लंग की पराधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूर लंग ने उसे भी मार भगाया। बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। उसके बाद औरंगजेब तक तैमूर लंग के वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब के बाद तैमूर लंग का राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रोटी तैमूर लंग को दिन्ही, तातें 7 बादशाही लिन्ही। एक दिन तैमूर लंग शिकार पर गया था, वर्द हो गया था। परमात्मा कबीर जी दोबारा उसी जिंदा साधु का वेश बनाकर तैमूर लंग से मिले। उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक ही रोटी थी घर पर। उसी समय तैमूर लंग परमात्मा कबीर जी के चरणों में गिर गया, दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया। 10 वर्ष और जीवित रहा। वह परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई भक्ति की। गवाह नंबर 10, हजरत मूसा जी। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया तथा पाक पुस्तक तौरत नाजिल की। उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दर्शकों, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का समावेश है। तौरत, जबूर और इंजील का संग्रह है पवित्र बाइबल। पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल का ज्ञान देने वाला यही अल्लाह है। कुरान शरीफ ज्ञानदाता, सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में हजरत मूसा जी को कह रहा है कि अल खिज्र के सामने तुम्हारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। दर्शकों, ये अल खिज्र कोई और नहीं, खुद कबीर देव अथवा कबीर परमात्मा थे। दर्शकों, यदि कुरान शरीफ और बाइबल के ज्ञानदाता को संपूर्ण ज्ञान होता तो एक आयत में ये भी लिख देते कि मेरा ज्ञान संपूर्ण है। बजाय इसके बाइबल और कुरान शरीफ ज्ञानदाता ने मूसा जी को नसीहत दी कि यदि तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो अल खिज्र से प्राप्त करो। दर्शकों, यही प्रमाण कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 59 में भी मिलता है, जिसमें कुरान ज्ञानदाता कहता है कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाखबर की खोज करो। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहता है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता, कुरान ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता एक ही है, जिसको संपूर्ण जानकारी नहीं है। वर्तमान में बाखबर अथवा तत्वदर्शी संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर कर दिया है। यथाशीघ्र संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। दर्शकों, देखिए आगे अल्लाह हजरत मूसा जी को क्या कहते हैं। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसीलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे। वह अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा,
अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। गवाह नंबर 11, इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊट महल में डोले, भूजत शाह बियाना। 16 सहज सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुरु शब्दे लई फकीरी, इब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबो दिव्य खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर दीवाना। चढ़त गयंत इंद्र की न्याय, सूरज अरथ छिपाना, सेना संग रल दल बादल, गरद जात आसमाना। 10 दिशा को मक्का फिरिया, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना। अब आपको दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा कैसे मिले। गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी आप तो मजाक कर रहे हो, कंवारी गाय कभी दूध देती है। ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बचिया ले आए, जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बचिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी ये बचिया दूध कैसे देगी, ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बचिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बचिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बचिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बचिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीबदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर
परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीबदास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया, उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीबदास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीबदास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में घटी रामायण को अपनी दिव्य दृष्टि से लिख दिया, जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मान्य है, इसी प्रकार वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध के दौरान बोली गई श्रीमद् भगवद गीता जी को वर्षों उपरांत अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा, जो सर्व भक्त समाज को मान्य है। ठीक इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज, जिनको खुद कबीर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाया और उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद उन्होंने लाखों करोड़ों युगों पहले घटी घटनाओं को और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म वेद में लिपिबद्ध करवाया है तथा इस सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात सभी धर्मों के सभी पवित्र प्रमाणित शास्त्रों से भी मेल खा रही हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सूक्ष्म वेद की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं, जिसको आम जन साधारण समझ नहीं पाता। उन्हें आम संत मानकर अनदेखा करने की भूल कर बैठता है। वैसे ही आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों ने कबीर परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितने सरल, साधारण और प्रामाणिकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा साबित किया है, ऐसा सिर्फ खुद परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत साहिब। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ज़्यादा साढ़े घरे दुर्गा माता की पूजा होंदी सी, वैष्णो देवी जाया करते सी। मैं आप 2 बार वैष्णो देवी गई हाँ जी। बाकी जे कहा जाए तो बहुत ज़्यादा विश्वास परमात्मा च नहीं दे बराबर सीगा, पर ऐ भी नहीं सी भी मैं पूरी तरह नास्तिक सी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਮਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ GNE ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਰਜਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਗ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਿੜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਥਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਰਯ ਸਮਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹਵਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਰਫ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰਜਤ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ, ਉਹ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਗ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਖਾਸਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਟੌਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਾਡਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸੁੱਜਣਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਲਿਟਰਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੜੀਆ ਪੋਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਝੇ ਪੋਤਾ ਹੀ ਦੇਂਗੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਆ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ SDO ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਜੀ।
ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਸਜੀ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਬੈਠਣਾ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਂਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 3 ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੌਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਢਾਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 3 ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਬੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਗਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਬੀਟੈਕ ਐਮਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਇੰਸ? ਪਰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਤਲੋਕ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਬ ਹਰੀ ਰੂਠ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।